محمد دیا چمکو تھا مثل جد علوم حق کا یہ باقر مبارک ہو نعرہ حیدری جاری 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 محمد رسول علیہ السلام برندر تلوات شکریہ بس ایک جزاک اللہ بر محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلوات صلی علی الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی رسول المسدد محمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعجل فرجهم اہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر میامین لا سیما علی امام المنتظر حجت الثانی عشر اللہم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وكسر أنصارهم وأهلك أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبت اہل بیت سے متصل کیا، اور جیسے ابھی والنٹیئر شنی شاہین مرزا نے کہا کہ یہ جو امام بارگاہ ہے، جہاں پر بھی مجلس عزا ہو یا محفل میلاد ہو، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ امام بارگاہ ہو، یہ بی بی فاطمۃ الزہرا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ضرور تشریف لاتے ہیں، اور بانی ہوتی ہی ہے جناب فاطمۃ الزہرا محمد وعلی محمد۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر خداوند عالم ہوتا ہے، جہاں ذکر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہوتا ہے، وہاں پر حتماً ضرور فرشتے جمع ہوتے ہیں اور انہیں گہرے میں لے لیتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے۔ آپ خود بھی محسوس کرتی ہوں گی جب یہاں پر آتی ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، کتنا سکون میسر آتا ہے۔ اور پھر خداوند عالم اپنے معتبر ملائکہ میں ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، تو حدیث قصہ پڑھتے ہی ملائکہ یہاں پر دور گرد لگا لیتے ہیں۔ بس اب اپنی اپنی نصیب ہے۔ ابھی آپ نے میلاد میں بھی سنا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب یہی تھا، مفہوم یہی تھا۔ بہرحال جیسے انہوں نے کہا کہ جو نہیں آ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے زوم پر دیکھیں، آ سکتے ہیں تو بے شک آئیں اور رونق بخشیں ان امام بارگاہوں کو۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔
आजिल फरजहुम। मैंने कहा खुदावंद आलम का शुक्र है कि उसने हमें मोहब्बत अहले बैत पर मुतस्सिल किया। तो हमें सिर्फ मोहब्बत तक ही महदूद नहीं रहना, हमें मुवद्दत तक आगे बढ़ना है। फरमाया ना खुदावंद आलम ने रसूल खुदा से कहा, अजर रिसालत चाहते हो, कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरन, उनसे कह दो अगर रिसालत का अजर तुम चाहते हो तो क्या है, मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मुवद्दत करो। मुवद्दत जो है मोहब्बत से। अल्लामा तबातबाई क्या फरमाते हैं, मुख्तसर से मोहब्बत और मवद्दत में फर्क बयान करते हुए कहते हैं, मवद्दत वो मोहब्बत है जिसमें अमल जाहिर होता है, यानी मोहब्बत कल्बी है और मवद्दत जो है वो अमली है। तो हमारी दुआ है खुदावंद आलम से कि खुदावंद आलम हमें सीरत और तालीमात अहले बैत पर अमल करने वाला करार दे। जो भी दीवाना हो गया, भीख दुनिया में मिली जन्नत ठिकाना हो गया, दिल की वीरानी मिटा देती है मधे अहले बैत, जब लिया नामे अली मौसम सुहाना हो गया। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद है। हमारा सलाम हो हुज्जतों के हुज्जत, इल्म इलाही के पैकर, सफीनतुल हिल्म सब्र, अबुल मेहदी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ये हमारी सआदत है, हमारी खुशबख्ती है कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं और दिल की गहराइयों से इमाम वक्त को, तमाम आइम्मा अत्हार को, खुसूसन बीबी फातिमा ज़हरा को तबरीक और तहनीयत पेश करते हैं। आपकी विलादत यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई 232 हिजरी में और शहादत हुई 207 हिजरी में, यानी आपकी उम्र थी 28 साल। इमामों के अगर हम जिंदगी को देखें ना तो सिर्फ छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की उम्र 65 इयर्स की है। तो बाकी तमाम इमाम या 50 में 40 में इनको शहीद कर दिया गया। खुसूसन जो सबसे ज्यादा जुल्म हुआ वो 9वें, 10वें और 11वें इमाम पर, उसकी वजह मैं अभी बयान करूंगी। 6 इमामों का, 6 खुलफाए बनु अब्बास का दौर देखा हमारे 11वें इमाम ने। इनके नाम तो थे बिल्ला, मुअतसम बिल्ला, मुतवक्किल बिल्ला, मुस्तंसिर बिल्ला, मुस्ताइन बिल्ला, ये सब बिल्ला तो थे। बिल्ला का मायने है ब यानी से, हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। थे तो बिस्मिल्लाह इनका लक़ब था, लेकिन गैरुल्लाह काम करते थे। बुग़्ज़ अल खुसूस मुतवक्किल को इतना बुग़्ज़ था मौलाए कायनात और उनके अहले खानदान से कि अल अमीन अल अमान, इसने तो ज़ियारत इमाम हुसैन को जुर्म करार दे दिया था। इनके जो इमामत का दौर आया, 6 साल का इमामत का दौर था हमारे 11वें इमाम का। उसमें 3 खुलफाए अब्बास, मुअतज़, मुअतदी और मुअतमद, जिसने शहीद किया इमाम को। जब इमाम हसन अस्करी की पैदाइश हुई तो तमाम लोगों में एक हलचल मच गई, अल खुसूस बनु अब्बास में, क्योंकि इनकी कोशिश ही यही थी। इनका काम क्या था, ये बनु उमैया की तरह दुनिया में महफ थे, अपनी दुनिया संवारने में लगे हुए थे। इनको उम्मत इस्लाम का जरा भी दर्द नहीं था और इतना जुल्म, इतना जुर्म करते थे इनके ऊपर कि हम बयान करने से कासिर हैं। अल खुसूस इनके जो सबसे बड़े मुखालिफ थे, जिनसे इनको बहुत ज्यादा खतरा था, वो आइम्मा अत्हार थे और उनके चाहने वाले। तो कहना ये कि आखिर इनको ये खतरा था क्यों, ये क्यों खतरा महसूस करते थे? 2 वजह थे।
सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि रसूल खुदा से सुन चुके थे कि मेरा 12वां आएगा जो मेरे नाम का होगा, मेरी कुन्नियत का होगा, ठीक। यानी अकीदे महदवियत से खौफ ज़दा थे, ये इनको खतरा था। लेकिन ये नादान इस बात से, इस हकीकत से गाफिल थे कि जब खुदावंद आलम कुन कहता है तो वो फयकुन हो जाता है। कहा ना, जब खुदावंद, हाँ, हम समझते हैं कि खुदावंद आलम के हम इरादों को बदल सकते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। दुआए फरज में क्या है? अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन, कुल्ले वली कल, यानी हो जा तू, क्या हो जा, वलीयन व नासिरन व हाफिजन, ये तमाम चीजें जो है तो परवरदिगार आलम तू उसका, उनका सरदार भी हो जा, हाफिज भी हो जा, निगहबान भी हो जा, और उनको इस दुनिया में भेज दे तवील उम्र करने के लिए। की वालिदा गरामी जनाबे हुदैसा खातून, देखें, इफ़्फ़त में, सखावत में, रियाजत और इबादत में मिसाली हैसियत रखती थी। इसी तरह आपकी ज़ौजा नरगिस खातून जो कैसर रोम की पोती थी, और शमून जो हजरत ईसा के नस्ल से थे, ये उन्हीं के नस्ल से थी। लेकिन खुदावंद आलम ने क्या मकाम दिया इन खवातीन को, तो हम खवातीन भी अपने मॉडेस्टी में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ईरान को देखें, ईरान में फौजी खवातीन हैं और क्या क्या काम नहीं करती हैं जो मर्द सोल्जर्स करते हैं। तो ये हुदैसा खातून मादरे 11वें इमाम, इनको इमाम ने अपना वसी भी बनाया था, नायब भी बनाया था। और आपके भाई थे जाफर, जो मशहूर है जाफर एक कज़्ज़ाब के नाम से, यानी झूठे, क्यों कि वो इमामत का दावा किया करता था, और जो खुम ज़कात अगर आ जाया करता था तो अपने पास रख लिया करता था। लेकिन तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि जब वो होश में आया, कहते हैं ना कि कभी भी ऐसा नहीं है कि खुदावंद आलम हमारे तौबा को कबूल ना करे, जैसे वो होश में आया उसने तौबा किया तो जाफर एक कज़्ज़ाब से जाफर तव्वाब हो गया। अब ये वल्लाह आलम, लेकिन हमें मायूस नहीं होना, इतने गुनाह हो गए हैं, अब क्या फायदा, नहीं, आखिरी दम तक खुदावंद आलम ने कहा है मैं बख्शने वाला हूं। तो एक भाई इमाम हसन अस्करी के जाफर, दूसरे सैयद मोहम्मद जिनका मजार बलद में है, कुछ फासले पर है काज़मीन से, और वहां पर औलाद की दुआएं मांगते तो कबूल होते हैं। फिर एक भाई हुसैन, एक खुद, और उनकी बहन आलिया या एलिया। बस मोमिनीन, कहना ये था कि ये बुग़्ज़ महदवियत रखते हुए इन्होंने इतने जुल्म किए हैं, इतने जुल्म किए हैं इन मासूमीन पर। इनको अपने मदीने से, अपने घर से, औलाद से अलग करके सामरा में लेकर आए। सामरा, उसका नाम सरमन राय, यानी जिसने देखा पसंद किया, या सुर्रा मर्रा, जिसने देखा मसरूर हो गया, तो उसका नाम शॉर्ट एंड स्वीट सामरा रख दिया गया। तो यहाँ पर मुअतसम बिल्ला ने, ये क्या था, ये मिलिट्री बैरक था, ये फौजी छावनी था, लेकिन मुअतसम यहाँ पर आकर मुकीम हो गया। और फिर इसके बेटे मुतवक्किल ने हमारे 10वें इमाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम को भी जबरन यहाँ पर लाकर रहने पर मजबूर किया इन्होंने। हमारे इमाम की उम्र उस वक्त बाज रिवायतों में 2 साल लिखी है, बाज में 4 साल लिखी है, कम से कम 2 या 6 साल के थे जब इनको अपने वालिद के साथ सामरा में आना पड़ा। आपके कुन्नियत अबू मोहम्मद, लक़ब अज़्ज़की और अस्करी तो आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर लक़ब है। इसके भी 2 वजह हैं, एक तो यही कि सामरा में जो मोहल्ला था, एक मोहल्ला, वो अस्कर उसका नाम था, तो वहां पर ये रहते थे। और दूसरी वजह जो तारीख नवीस बताते हैं कि यही मुतवक्किल ने अपने 90,000 फौज का रौब दिखाने के लिए
इस मकाम पर इमाम को बुलाया और फौजियों से कहा जब इमाम आएंगे ना तो अपने गुर्स को जमीनों पे मारना ताकि एक दहशत, एक रोब तारी हो जाए। जैसे ही इमाम हसन अस्करी के साथ यानी हमारे 10वें इमाम 11वें इमाम के साथ जब तशरीफ लाए हैं तो इन्होंने शोर मचाया। हमारे 10वें इमाम ने अपने फर्जंद हसन को देखा, कहा बेटा जरा अपने अस्कर को भी तो दिखा दे। अब इमाम हसन ने अपने हाथों को बुलंद किया, क्या देखा कि जमीन से आसमान तक फरिश्तों का दस्ता है, फजाई फरिश्ते, फजाई आसमानी मलाइका कहते हैं हुक्म दीजिए आका, जिस शहर को कहेंगे, जिस फर्द को कहेंगे तबाह कर देंगे। मुतवक्किल ये सुनकर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो आकर कहता है हमारे बुजुर्गों ने सच कहा था, अगर अहले बैत ना होते तो हम हलाक हो चुके होते। तो कुदरत ने भी, ज़ीशान हैदर जवादी ने बड़ा अच्छा फरमाया कि कुदरत ने भी ये तय कर लिया था, तुम जितना मिटाते जाओ हम बनाते जाएंगे, तुम हटाते जाओ हम भेजते जाएंगे। आखिर एक दिन आएगा जब तुम इन्हीं की चौखट पर सर झुकाते हुए नजर आओगे। मोहम्मद। और दूसरी वजह क्या थी? एक तो अकीदा महदवियत का खतरा था इनको, दूसरी वजह क्या थी कि इमाम हसन अस्करी के दौरान जमाने में शिया मुस्तहकम हो रहे थे, मजबूत हो रहे थे, यूनाइटेड हो रहे थे, एक ऑर्गेनाइज शिया सिस्टम ज़हूर में आ रहा था। तो ये उनसे देखा नहीं जा रहा था, कोशिश थी कि इसको तबाह कर दे, यानी फिक्री, इल्मी और इक्तिसादी सरमाए को मफलूज करने की कोशिश थी। आज भी हम समझते दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा ना, दज्जाल आ चुका है। ये एक आंख जो है, आरिफ काज़मी ने फरमाया, कितना खूब ये जो उल्मा फरमाते हैं, इन्होंने कहा कि दज्जाल आ चुका है एक आंख वाला, यानी इसका नजरिया क्या है? माश पर, इकोनॉमिक को तबाह करने मांग रहा है। हर कोई माश के पीछे है, यानी जब कोई माश के पीछे लग जाएगा तो माद को फरामोश कर देगा। इनका मकसद ही यही है। दज्जाल आ चुका है। ये हमारे हाथों में जो मोबाइल है ना, ये भी सबसे बड़ा दज्जाल है, सबसे बड़ा दज्जाल। हम घरों में बैठे होते हैं, हर एक के हाथ में होता है, किसी को किसी की फिक्र नहीं होती है। इस दज्जाल ने तमाम पूरे खाने वादे का कर दिया है बुरा हाल। तो हमें होश में आना है, अपने आप को मुस्तहकम रखना है, और इस चीज के लिए हमारे इमाम हसन अस्करी ने क्या किया? एक नियाबत का सिलसिला कायम किया। मुख्तलिफ इलाकों में अपने मोतबर उल्मा को, वकला को, यानी वकीलों को, सफीरों को भेजा खतो किताबत के लिए। ये क्या कर रहे थे इमाम? ये गैबत के लिए हमें तैयार कर रहे थे कि जब तुम्हारा बारवा गैबत में होगा तो इस तरह तुम अपने इमाम से राबता रख सकते हो। तो हमारा फर्ज है, हम अवाम है, हमारे दरमियान उल्मा है, और हदीस में कहते हैं कि उल्मा जो है वो पुल का काम करते हैं अवाम, और वो भी अमानत है। तो अपनी जबान की निगहदारी कीजिए। देखिए, मर्द पिन्हा अस्त दर ज़ीरे ज़बान खीश्तन, कीमतो कदरिश न दानता नयायत दर सुखन। क्या मतलब? कि एक इंसान, एक मर्द जो है वो अपने जबान के नीचे छुपा हुआ है, जैसे ही उसने कहा उसकी तमाम असलियत बाहर आ गई। यानी जबान ताला है, हमारा खुश अखलाकी, हमारी अच्छी सीरत जो है दुकान है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की थी या कोयले की थी। तो ये अपनी अमानत, अपनी जबान की निगहदाश्त करें। और फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का नाम आता था ना,
तो इमाम रुक के लब्बैक या अल्लाह कहते थे। हमें भी रुक कर कहना चाहिए। ये तवज्जो के साथ कुरान को पढ़ें। सिर्फ पढ़ लेना, बस फर्ज अदा कर लेना नहीं है। चाहे एक आयत पढ़े, मायने के साथ पढ़े, अपने अमल में उसको लाने की कोशिश करें। तो कहा कि ए ईमान वालों, जिक्र अल्लाह करो और कसरन, कसीर से करो। जहां बैठे हो करो, बाहर जाते हो करो। अल खुसूस बाजारों में जिक्र इलाही, क्योंकि वहां पर शैतान ज्यादा होता है। जितना आप जिक्र इलाही करोगे, पलट पलट कर वापस आओगे इंशाअल्लाह। और राजदारी भी अमानत है कि राजों को पोशीदा रखना। देखिए, वो तो आपने मिसाल बारहा सुनी होगी कि एक उस्ताद ने किस तरह अपने स्टूडेंट्स के सोच को उभारा। एक सफेद कागज पे उसने एक काला नुक्ता लगाया, कहा कहो क्या नजर आ रहा है ना। अगर हमने भी ये वाकया नहीं सुना होता तो हम भी कहते काला नुक्ता नजर आ रहा है। तो उस्ताद कहता है अफसोस है मुझे कि इतना बड़ा सफेदी ओझल हो गया आपके नजर से, और एक नुक्ता सियाह जो है वो आपको नजर आ रहा है। क्या बताना चाहते थे कि जब एक मोमिन सफेद लिबास में, मिसाल दे रही हूं, एक मोमिन सफेद लिबास में आया, बंदा बशर है, मामूली सा दाग उसके लिबास पे लगा हुआ है। दूसरा मोमिन का फर्ज क्या है, उसके करीब आए, कहे बहुत खूबसूरत लिबास है, बहुत बेहतरीन लिबास है, कानों में आकर कहे इस दाग को धो लो। यानी मोमिन का आईना होना चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए कि दूर से बैठा हुआ कहे अरे देखो उसके तो सफेद लिबास पे कितना बड़ा दाग है। ठीक है, तो हमें दूसरों की बुराइयां बहुत जल्दी नजर आ जाती है। जितनी भी अच्छाइयां किया होता है ना किसी ने भी, वो हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। बस ये कहना कि हम इस दोस्त को बदलते हैं, हम इस घर को बदलते हैं, हम मुल्कों को बदल देते हैं, क्या कि हम किसी से सेटिस्फाई नहीं होते। गालिब ने क्या खूब कहा है, उम्र भर गालिब भूल करता रहा, उम्र भर गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। यानी हमारे खुद के अंदर की जो गंदगियां होती है ना, वो हमें कभी कालक नजर नहीं आती। या तो फिर ये कह ले कि पूरा लिबास ही हमारा इतना काला होता है कि उसमें काले धब्बे नजर ही नहीं आते, दूसरों के सफेद लिबास पे फौरन नजर आ जाते हैं। बस हमारी ये दुआ है खुदावंद आलम से कि हमें हदीस मासूमीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस हदीस के साथ कि इमाम ने फरमाया औलाद भी अमानत है, और हम देखें औलाद के लिए क्या क्या दुआ करते हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कभी खूबसूरत औलाद, कभी कद बुलंद औलाद की तमन्ना नहीं की खुदा से। क्या दुआ की कि खुदावंद आलम मुझे ऐसे औलाद अता फरमा जो तेरे मुती हो, फरमा बरदार हो, तुझसे खौफ रखते हो। अब खौफ का मतलब डर नहीं है मोमिनीन। जब हम किसी को चाहते हैं तो हमें ये फिक्र होता है ना कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। हमें इस बात का खौफ होता है कि अगर हमने उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया, वो हमारी तरफ रुख नहीं करेगा। तो ये मोहब्बत है। तो मौला फरमाते कि जो तेरा मुती हो, तुझसे खौफ रखता हो, और जब मैं उनको इबादत में देखूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाए। तो ये जो लफ्ज है ना, तालीम और तरबियत, ना पहले तरबियत फिर तालीम। तो हमें अपनी औलाद को बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत देना है इंशाअल्लाह। और इसी इमाम के
حدیث کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں امام حسن عسکری صلاۃ والسلام بلکہ تمام اہل بیت علیہ السلام کے لیے باعث زینت بنانا، باعث شرمندگی نہ بنانا انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں کو ان کی یاد سے منور فرما، وہ ہم سے راضی و خوشنود رہیں انشاءاللہ۔ ہماری زندگی اور آخرت کے تمام مرحلوں میں ان کی شفاعت اور رہنمائی نصیب فرما۔ جس نے التماس دعا کے لیے کہا ہے خداوند عالم ان کی جائز شرعی حاجات کو پوری فرما۔ جتنے حاضرین محفل ہیں خداوند عالم ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یہ زحمت کر کے آئے ہیں، اپنے گھروں سے ادھر اتنے دور آئے ہیں، بے شک وہاں پر ریلی ہو رہا ہے یا دھرنے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ آئے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی خالی گودوں کو دعاؤں سے، ان کی تمناؤں سے پر کر دے انشاءاللہ۔ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو انشاءاللہ۔ جو لا اولاد ہے انشاءاللہ خداوند عالم ان کو اولاد جیسی انشاءاللہ ان کو اولاد جیسی نعمت سے تو نواز، اور جن کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا، ان کے ایمان، عزت و آبرو، جان اور مال کی حفاظت فرما۔ تمام منتظمین ہیں یہ جو امام بارگاہیں ہیں ان کو بھی توفیق دے، ان کی ہمت میں، ان کی طاقت میں وسعت عطا فرما انشاءاللہ۔ اس سے بہتر طریقے سے جشن ولادت اہل بیت اور عزائے امام بھی منانے کے قابل اور ہمیں توفیق نصیب ہو انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔